Sir, if you could tell us, what is the overall market opportunity? तो 2022 में बेसिकली अप्रोक्स 300 मिलियन के आसपास का मार्केट था। कस्टमर्स को कैसे हम हमारी मार्केट पोजीशनिंग की है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। जो बिगर प्लेयर थे उस वक्त के, हम लोगों ने उनको भी कम्पीट करके अपने आप को मार्केट में स्टेबल किया है। ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट बेस है, इसमें ओएनएम यानी सर्विस का कंपोनेंट कितना होगा मोटा मोटी सर? जो जैसे वारंटी फेलियर एज ऑफ नाउ जो हमारे पास सर्विस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग है, वो अबाउट 0.3-0.5% के करीब ही रहता है। सर मोटा मोटी हमारी एक्टिव कस्टमर बेस कितने हो? पैन इंडिया अबाउट 347-350 के करीब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। Welcome friends, my name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Conexa High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors in a much better way, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can get very good information from such inputs from the company. And this helps all our investors to take a very conscious call when they do plan to invest in such companies. And friends, today we've got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Smarton Power Systems Limited, and I have the privilege of having the top management team with me. I have Mr. Arun Bharadwaj, who's the managing director of the company. Arun ji, welcome to the show. Thank you for your time. And we also have Mr. Rajnish Sharma, who's the whole-time director and the CEO of the company. So Rajnish ji, आपको भी बहुत thank you. So without wasting time, sir, first सवाल जो काफी important है, which is very relevant for our investors. Sir, if you can actually explain to us what is the business model of our company, what do we do, and in this journey, how did this journey start? Like, was it a first generation effort, or was it something which was started by your father and then you took it over? So if you could just give us some flavor on the business journey also. Yeah, actually, we Smarton Power System is primarily engaged in the design, assembling, and the distribution of the power backup and the solar energy products. Our product portfolio includes home UPS, solar inverter, PCUs, solar charge controller, and we also trade in solar panel and the battery. These are our trading part basically. We have a very strong distribution network across India in about 23 states and the Union territory. Additionally, we have the international presence as well, and by the exporting in 16 international market in Africa, in Middle East, and Asia. Our journey, if we talk about our journey, we started our operation, this company in 2014 with the clear vision, like we have to give the reliable and the efficient power backup solutions. We have the complete in-house R&D. We have the very good, the customer service board. Since last 11 years, we are from the revenue growth from 0 to 200 CR, we reached by the end of financial year 2025 with the probability and the sustainable growth. And we have around 350 distributors into the domestic market and about 30 plus distributors in international distributors. So, Arunji, now one more thing I wanted to understand is that, sir, if you could tell us, basically within all the 4 products what we have, which you mentioned to me, जिसमें मेरे ख्याल से home UPS systems है, solar inverter है, batteries है, solar panels है, solar charge controllers है. So all these products, sir, what is the most important product for the company as of now, or is it a basket of products which you offer to the customers? क्या एक ही एक दो प्रोडक्ट पे ही ज्यादा फोकस है या सारे प्रोडक्ट्स हम एक बास्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को ऑफर करते हैं? अभी हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ये हम लोग जैसे होम यूपीएस, सोलर इन्वर्टर, सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये सब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ में ट्रेडिंग में बैटरी एंड सोलर पैनल हम लोग करते हैं। बट एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जहां पर इन्वर्टर लगेगा उधर बैटरी भी लगेगा, बैटरी के साथ जिधर सोलर लगेगा उधर सोलर पैनल भी लगेगा। तो हमारा मेन फोकस हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग अभी बैटरी में भी एंटर हो रहे हैं, तो बैटरी और इन्वर्टर
एज ए लाइक कंप्लीट पैक के ऊपर ही हमारा कंप्लीट फोकस है। समझ गए। सर अगला सवाल रजनीश जी को होगा। सर इफ यू कुड टेल अस व्हाट इज द ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी। सर हम अभी इस लेवल तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जो सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, सर ओवरऑल इंडिया जैसे मार्केट के लिए आपको क्या लगता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, टोटल मार्केट साइज इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, and as a company how do we plan to strategize and capitalize on this growth going forward? If you could please share your thoughts. बेसिकली सर एज पर बेसिकली जो सोर्स है मार्केट के, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका 2022 में बेसिकली आपका अप्रोक्स 300 मिलियन के आसपास का मार्केट था। और अभी एक्सपेक्टेड जो बेसिकली ग्रोथ है, जो मार्केट अभी ट्रेंड चल रहा है 2032 तक, आई थिंक दैट विल बी अप्रोक्स 490 मिलियंस के आसपास का मार्केट होगा। सर लेकिन इसमें हमारी पोजीशनिंग क्या है अरुण जी? इफ यू कुड आल्सो चिप इन सर। हमने हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को, हमारे कस्टमर को कैसे हम हमारी मार्केट पोजीशनिंग की है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। मार्केट पोजीशनिंग की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग 2014 में जब स्टार्ट हुए, वहां पर जो बिगर प्लेयर थे उस वक्त के, हम लोगों ने उनको भी कम्पीट करके अपने आप को मार्केट में स्टेबल किया। तो हम लोग एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड द सर्विस प्रोवाइडर, इस चीज के अंदर हम लोग अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसके ऊपर एज पे समझते हैं। समझ। सर इसमें ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट बेस है, इसमें O&M यानी सर्विस का कंपोनेंट कितना होगा मोटा मोटी सर? सभी सर्विसेबल प्रोडक्ट होते हैं, बट जैसे 2 to 3 इयर्स का हम लोग सर्विस वारंटी देते हैं अपना। लेकिन जो जैसे वारंटी फेलियर एज ऑफ नाउ जो हमारे पास सर्विस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग है, वो अबाउट 0.3-0.5% के करीब ही रहता है। ठीक है, समझ। और सर अभी करंटली हमारे कितने कस्टमर्स होंगे? हमने कहा कि हमारा करीबन रेवेन्यू 200 करोड़ है, तो सर मोटा मोटी हमारे एक्टिव कस्टमर बेस कितने होंगे आपके हिसाब से? डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर अभी हम बात करते हैं तो अबाउट हमारे पैन इंडिया अबाउट 347-350 के करीब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे फिर हमारा एक डीलर नेटवर्क रहता है, और डीलर से देन कस्टमर नेटवर्क रहता है। तो बेसिकली इट इज लाइक अ B2B मॉडल, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचते हो, फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल कस्टमर को माल बेचता है। डीलर्स को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को बेचते हैं, डीलर आपका कस्टमर। अच्छा, समझ। सर अभी मेरे को बताइए, हमारा जो प्रोडक्ट बेस है इट इज बेसिकली B2B प्रोडक्ट, तो सर इसमें प्राइसिंग कैसे होती है? लाइक मान के चलिए आपके कोई रेगुलर कस्टमर है जो काफी समय से आपसे खरीद रहे हैं, there are large corporate customers, there are some customers which are like direct residential customers. So pricing हमारे बिजनेस में कैसे होता है? लाइक रॉ मटेरियल प्राइस प्लस कन्वर्जन मार्जिन होता है, या इसमें इट इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ कॉस्ट? लाइक बीच में अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया कोई बड़े ऑर्डर के लिए, तो is there any flexibility with your big customers that you can pass through those raw material costs or maybe some other input costs, or is it like a contract price which is final and then at that price only you have to supply? नहीं, ये अपना प्राइसिंग जो रहता है वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम B2B में चलते हैं, डायरेक्ट कस्टमर सेल के ऊपर कंपनी नहीं जाता है। तो और सेकेंडली ऑब्वियसली आपका जैसे ही रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है प्राइसिंग के ऊपर, वो हमारा फिर मार्केट प्राइसिंग के ऊपर रहता है, बट सेम लाइक इनटू द अदर कंपनी एज वेल। जो वो सभी कंपनीज के लिए सेम है। लाइक आफ्टर कोविड सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा प्राइसिंग के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, तो वो सभी कंपनीज के लिए हुआ। तो वहां पर एक मार्केट का प्राइसिंग है, वहां से चलता है सेगमेंट, दूसरा आपका खुद का जो आपका कॉस्टिंग है वहां से चलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइस पोजीशनिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर एंड के ऊपर। ठीक है, उसका मतलब बेसिकली जब भी रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ता है, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो उसका मतलब इसका पास थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूटर को करते हो, एंड ऑन दैट नेगोशिएटेड प्राइस देन द डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू सप्लाई टू द डीलर, राइट? राइट, वो चलता है उसी तरीके से होता है। ठीक। सर मेरे को बताइए, हमारी इंडस्ट्री में ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? क्योंकि देखिए काफी कंपनीज ये मार्केट में काम करती है, बट ओवरऑल इज इट अ मार्केट वेयर एवरीबॉडी गेट्स इनफ बिजनेस फॉर देमसेल्फ, और इज इट अ वेरी कॉम्पिटिटिवली इंटेंसिव मार्केट जहाँ पे धंधा खींचने के लिए आपको प्राइस कटिंग करनी पड़ती है या कस्टमर को थोड़ा सा और इंसेंटिव देना पड़ता है? हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री फॉर अस?
ये सभी कंपनी, ये कंपनी का इसी इंडस्ट्री का ट्रेंड है। यहाँ पर आपका स्कीम्स चलती हैं, डिस्काउंट चलते हैं, क्वार्टरली स्कीम्स चलती हैं, ईयरली टीओडी चलते हैं। इट इज सिमिलर फॉर द ऑल द कंपटीशन। वो हमारे साथ भी वैसा है, कंपटीशन के साथ भी वैसा है, वो सभी के साथ इसी तरीके से चल रहा है। नहीं ठीक है, उसका मतलब रीजनेबली हेल्दी कंपटीशन ही हम मान के चले, दैट इज हाँ व्हाट जी, इट इज। बिल्कुल। सर अभी फाइनेंशियल थोड़ा बाजू में रखते हैं, मुझे बताइए सर, अभी आपने इतना एक बेस बनाया है कंपनी का, आई थिंक प्रोडक्ट हैज बीन वेल एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स। सर मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू एड व्हिच वी गिव टू द फाइनल कस्टमर, लाइक आपका B2B चेन है, obviously that product is consumed by the masses through the dealers, but sir what is it so special about us that we get maybe more repeat business or we get the customer patronage for our products? What is it that we do little differently from others and that has helped us stand so strongly in the market? So sir, one or two qualitative points from your side. जैसे कस्टमर क्या चीज चाहता है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। हम कस्टमर लेवल पर एक सर्वे करते हैं, उसके ऊपर चेक करते हैं सिंस स्टार्टिंग। वहां पर हम लोग ये जानते हैं कि कस्टमर को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक इन 2014 व्हेन वी स्टार्टेड, वहां पर कुछ ऐसे फीचर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के अंदर डाले जो आज तक हमारे बहुत ज्यादा यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं हमारे, जो दूसरी कंपनी आज तक हमारे को कॉपी भी नहीं कर पाया है। सपोज लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि लाइक इन्वर्टर रहता है एक और एक बैटरी रहता है। जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी अपना अवेलेबल रहता है तो इन्वर्टर अपना वो चार्ज करता है बैटरी को, वो चार्ज को स्टोर करता है बैटरी के अंदर। एंड व्हेन जब पावर कट रहता है तो उसी चार्ज को लेकर वो बैटरी से लोड में देता है। तो बेसिकली ये एक फंडामेंटल है जो बेसिक लेवल के ऊपर होता है। अब यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रॉब्लम क्या था कि बैटरी जब डीप में चला जाता था, जब बैटरी डीप में जाता था तो कस्टमर को वो बैटरी या तो सर्विस सेंटर से बूस्ट चार्ज करना पड़ता था या फिर उसको एक एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर लाकर अपनी साइड पर बैटरी को यानी कि डीप से आगे चार्ज करना पड़ता था। ये फीचर किसी भी इन्वर्टर में ना तब मिल था ना आज है। वहां पर हम लोगों ने वो फीचर डाला था और वहां से ये यूएसपी जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं, तो वहां पर हम लोगों के ये कुछ यूएसपीज हैं। बाकी सर्विसेज है, टाइमली रिस्पॉन्स है, क्वालिटीएबल प्रोडक्ट है, 90 वोल्ट बैटरी चार्जिंग है, ये बहुत सारे अदर फीचर हो। नहीं समझ गया, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने अरुण जी। सर अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सर काफी अच्छा नंबर आपका FY24 के लिए आया है सर, 195 करोड़ का टॉप लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो करीबन 11.3 करोड़ है, जो मेरे ख्याल से पिछले टाइम 5.15 करोड़ था। तो सर मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्प्रूवमेंट कैसे आया? टॉप लाइन तो मेरे ख्याल से मॉडरेट ही बढ़ा है, लेकिन बॉटम लाइन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। प्लस मैं देख रहा था कि सर जून क्वार्टर के जो नंबर्स हमको दिए गए हैं वहाँ पे भी अच्छे इम्प्रूवमेंट आपकी आई है। दैट ऑल्सो आई थिंक कंपनी हैज शोन वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी, करीबन 4.05 करोड़ का पैट है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। सर मुझे बताइए ये दोनों नंबर जो इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है सर, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सच अ बिग जंप इन प्रॉफिट्स? टॉप लाइन तो बड़ा है मान के चलते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है, तो सर इसकी वजह क्या है? इसमें मेन जो रीजन है, एक तो आफ्टर कोविड जो सेमीकंडक्टर के अंदर इंक्रीमेंट था वो बाद में प्राइस स्टेबल हुए, एक तो वो मेन रीजन था। बट उससे मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि हम लोगों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम करना शुरू किया। जो हम लोग अपना होम यूपीएस बनाते हैं उसमें सभी पार्ट्स असेंबलिंग के बाहर आते हैं, हम लोग असेंबल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। बट बिफोर 2.5 ईयर वी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मर यूनिट बाय आवर ओन। तो हमने ट्रांसफॉर्मर यूनिट को हम लोगों ने, जो ट्रांसफॉर्मर जो पार्ट है इन्वर्टर के अंदर का, वो अबाउट 30 to 35% कॉस्ट रखता है इन्वर्टर की कॉस्ट का। तो वो सबसे लाइक इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट पार्ट है। उसको हम लोगों ने अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया उसका, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का इंक्रीमेंट हुआ और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट। समझ गया, तो बेसिकली दैट वाज द मेन रीजन फॉर द इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। सर मुझे बताइए कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी तरफ से हो रहा है? आर वी प्लानिंग टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट्स और एनी R&D गोइंग ऑन एनी प्रोडक्ट व्हिच यू प्लान टू लॉन्च इन फ्यूचर? सर इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा कंप्लीट हमारा R&D टीम है, जिसके अंदर अलग मैकेनिकल डिजाइनर हैं, आपके सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, पीसीबी हार्डवेयर, सभी डिजाइनर हमारे पास, सभी इंजीनियर R&D में अवेलेबल हैं। ओबियसली
कंपनीज को आपका आगे के फ्यूचर के 3 इयर्स 4 इयर्स के प्लान आपको लेकर चलने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आने वाले टाइम के प्रोडक्ट हैं, नई टेक्नोलॉजी हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा अरुण जी, एक सवाल जो वेरी बेसिक है, अभी देखिए FY24 तो पुराना हो गया, FY25 भी खत्म हो चुका है। सो सर व्हाट एवर यू कैन शेयर विद अस सर, अगर FY25 का थोड़ा आइडिया मिले कि सर आपका टॉप लाइन क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है सर, वो भी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट होगा। तो इफ यू कैन प्लीज शेयर दोस डेटा पॉइंट्स इफ यू कैन प्लीज। ये अपना अब अगर 25 की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग 200 प्लस 205 के करीब हम लोगों ने क्लोज किया है। ठीक है। बेटा मार्जिन इज अबाउट 9% एंड द पैट इज अबाउट 6.5। ये टॉप लाइन के अंदर ज्यादा बेसिकली आपको पिछले साल से ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ वी आर रनिंग इन फुल कैपेसिटी। जो हमारे अभी प्रोडक्शन प्लांट है वो अभी हमारा फुल कैपेसिटी है। ठीक है, समझ। अच्छा सर, नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आज का इंटरव्यू के लिए। सर वी आर प्लानिंग टू गो पब्लिक, तो अगर आप बताएं कि सर बेसिकली कितना कैपिटल हम मार्केट से उठाने वाले हैं, और सर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग दिस मनी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा इस बिजनेस को डाउन द लाइन अगले 2-3 साल के अंदर डबल ट्रिपल करने का है। मिनिमम डबल एंड 2.5 टाइम करने का है। इसमें बिकॉज ऑफ जैसे अभी हम लोग अपना एक नया प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलायंस मेट में, यहाँ पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके अंदर हम लोग अबाउट 4.5 के अंदर जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का हमारा प्लान है, जिससे हम लोग अपना टॉप लाइन बढ़ा पाएंगे हमारे बैटरी उसमें। जो हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं बाय द दिस फाइनेंशियल ईयर एंड, उसमें भी हम अबाउट 4.5 CR का कैपिटल, बिकॉज ऑफ हम लोग वहाँ पर ऑटोमेशन करने जा रहे हैं। जो अभी मैनुअल लाइंस हैं वो ऑटोमेशन में जा रही है, उधर का है 22 CR के करीब का हम लोग, बिकॉज ऑफ इन सब चीज़ों में फिर कैपिटल का आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो उधर सबका ये सब चीज़ मिला के ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर सकें और जिस तरीके से हम लोग अपनी टॉप लाइन को और मार्जिन को इंक्रीज कर सकें। अरुण जी, ये जो कैपेसिटी डबलिंग की बात आपने बोली है, हमको कब तक ये कमिश्निंग पॉसिबल लगेगा, पैसा हम उठाएंगे, व्हाट इज द काइंड ऑफ टारगेट की ये नई कैपेसिटी कभी कमीशन होगी आपके हिसाब से। नहीं, ये अभी काम चल रहा है उसमें फुल फ्लैश से, पिछले 1-1.5 साल से काम चल रहा है एंड वी आर टारगेटिंग कि बाय दिसंबर एंड वो कंप्लीशन में हो जाए और मैक्सिमम जनवरी एंड हम वहाँ पर ऑपरेशन हो जाए बिफोर आवर सीजन स्टार्ट। हमारे जो मेन है इस इन्वर्टर सेगमेंट के, वो आपका फेब टू जुलाई अगस्त चलता है, तो बिफोर जनवरी हमारा उधर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो सर ये बात चले अरुण जी की नॉर्मली हमारे लिए सेकंड हाफ इज ऑलवेज बेटर देन द फर्स्ट हाफ फॉर आवर बिजनेस। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑलमोस्ट सिमिलर। जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो रहता है अप्रैल मई जून एंड द लास्ट क्वार्टर, ये दोनों बढ़िया रहते हैं बेसिकली। समझ। सर अभी मेरे को थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए। यू सेड यू आर रेजिंग सम मनी फॉर वर्किंग कैपिटल आल्सो फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड फॉर न्यू बिजनेस। सर वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे धंधे में नॉर्मली व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल? जब आप कंपनी से प्रोडक्ट सप्लाई करते हो आपके B2B पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर वो डीलर को सप्लाई करता है, डीलर कस्टमर को देता है और फिर the money comes back to you. So what is the normal working capital cycle in our business? वर्किंग कैपिटल जैसे हम लोग प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, आगे मार्केट में भी चलता है, बट फिर भी आप ये बोल सकते हैं इट इज अराउंड 45 to 50 days। ओके। और नॉर्मली सर हम इन्वेंट्री कितना रखते हैं? यानी ये बिजनेस में तो आपको क्रिटिकल पार्ट्स की इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती होगी, तो ये जो इन्वेंट्री का पीरियड है वो भी करीबन 1 महीना होगा मोटा मोटी। हाँ, वो इतना रहता है। वो साइकिल में जैसे विद इन 1 मंथ में जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड में कर रहा है, फिर इस तरीके से एक साइकिल बना हुआ है, वो 35 डेज में चलता है। सर आखिरी सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क है? सी वी हैव सीन कोविड, अभी तो एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल, इकोनॉमी इज आल्सो ग्रोइंग। सर मुझे बताइए इन आवर बिजनेस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? लाइक इज इट रॉ मटेरियल प्राइसेस, इज इट द एग्जीक्यूशन, इज इट रिटेनिंग योर कस्टमर्स? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क हमारे धंधे में क्या है और वो आप किस तरह से मॉनिटर करते हो, उसके बारे में बताओ। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो कुछ नेग्लिजिबल रिस्क फैक्टर रहते हैं, लाइक वारंटी का, सर्विस का, वो इजीली हैंडल हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़े नहीं है।
बट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक मार्केट का रिस्क है, कोई एक्सटर्नल आपका जैसे इंटरनेशनल कुछ डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से आपका मार्केट के ऊपर चलता है, जैसे आपने अभी कोविड का बताया, उसकी वजह से जो चलता है, दे आर द लाइक बिगेस्ट रिस्क फॉर अस बेसिकली। अदरवाइज तो बेसिकली ये मान के चल सकते हैं हम लोग अरुण जी की रनवे ग्रोथ का काफी बड़ा है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम डिस्काउंट करें तो ग्रोथ पोटेंशियल अगले 3, 4, 5 साल के लिए डेफिनेटली लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, करेक्ट? राइट, डेफिनेटली। एनीवे आई थिंक सर दोनों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, रजनी जी और अरुण जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने को, और सर आपका पब्लिक इशू आ रहा है तो उसके लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।